Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are going to discuss very important thing, that is paper pattern and chapter wise marks distribution. So today's session is very important. Listen carefully and try to study as per the pattern only. So let's start. Here you can see chapter wise, unit wise weightage is given. Now see, this is according to our Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune. So this is according to our state board only. Okay. So you have to see this marking scheme. These are the marks without option and these are the marks with option. Here chapter wise mark distribution is given. So you can plan accordingly. Okay, so the first chapter is our advanced web designing. This carries without option 20 marks and with option it is of 30 marks. Now, here the question arises is why this is of 30 marks. Here option you are going to get where in the coding section. Okay, the question number 8 is a coding section. So in that section you are going to get the option. That's why this question carries option 30 marks. Okay, then digital marketing. Digital marketing, it is of 15 marks and with option also 15 marks. No extra question is there. This question from this chapter, whatever the question is asked, there will be no option. Okay, then the next chapter is computerized accounting with GST. This is of 15 marks and here the marks with option is 17 marks. So here this option can be from question number 7. So option will be from question number 7 which carries 2 marks. They are the question answer part. So this question number 7 is question answer and question number 8 is what? It is coding. So these are having the options. So this chapter, this 2 marks extra is there with option. This is from this question number 7. Okay. Then next one, e-commerce and e-governance. This marks is of 10 marks and marks with option is 12 marks. Same thing, 2 marks difference is there. Then this is from question number 7 because question number 7 is only such a question where the questions will be of 2 marks. Okay. Then database concept using LibreOffice base. This is of 10 marks without option and 10 marks with option. So this question will be not going to come in question number 7 or 8. It will be present only in the objective sections. Then last chapter, that is enterprise resource planning, that is ERP. This is of 10 marks, this chapter, and with option it is of 12 marks, means naturally these 2 marks are extra. So this will be of which chapter? This will be of which question? 7th question. Okay, so this are total 80 marks and marks with option is 96. So students who are solving all the questions without options, okay, without options, if they are solving, then they are solving 80 marks question, and with option if they are solving, then they'll be getting 9, means they are going to get 80 marks only, but they will be solving question of 96 marks. अगर स्टूडेंट्स लोगों ने ऑप्शन के क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको ऑप्शन रहने वाला है, solve any 3, solve any 4, like this. And question number 8 also there will be coding and it will be solve any 1. Okay, so अगर ऐसा question है तो what will happen then? If you are solving all the questions, option दिया है फिर भी आपने पूरे question solve कर दिए, then you are solving 96 marks question, but you are going to get how many marks? 80 marks only, means you are not going to get 96 पूरा marks. अगर full 96 marks का किसी भी बच्चे ने पूरा पेपर एकदम करेक्ट सॉल्व किया है, 90 marks out of 96 marks out of 96, then also he or she is not going to get 96 marks. Okay, उसको मिलेगा तो 80 ही marks मिलेगा. But just the difference is that 96 marks when it is going to when you are going to calculate when you are solving all the questions with option as well.
यहाँ पे जो भी ऑप्शंस में दिया रहेगा फिर भी आपने पूरे सॉल्व कर दिए, और यहाँ पे भी जो कोडिंग दिया रहेगा वो ऑप्शन में रहेगा, वो भी आपने पूरा सॉल्व कर दिया, देन दैट टाइम यू आर गोइंग टू, means that time we can say that you have solved paper of 96 marks, but you are not going to get 96 marks. Remember this one thing, paper will be always, means whatever the marks you are going to get, that is out of 80 only, not out of 96. Okay, and the remaining 20 marks will be for practical, so total it will be of 100 marks. Understood all of you? I think this is clear to you. This is unit wise, means the topic wise you can see, chapter wise you can see, these are the marks distribution, and the highest mark is to the first chapter, that is advanced web designing. So if some students who have not completed the study, so you can plan the study according to the this marking schema. And even if some students, if they do not want to study any chapter, then they can plan according to this chapter, because the first chapter carries highest marks, 20 marks, so you can plan accordingly. Okay, then let's move further. Now next is weightage to types of question. Means how many different types of questions are asked in your question paper. There are three different types of question. One is objective type, another one is short answer, and last one is long answer. These are the marks without option and these are the marks with option. Objective type questions, these questions will be from question number 1 to question number 6. And here the marks are without option is 60 and with option also 60. Because in objective type question there will be no selection. Okay, means write any 5, any 10, any 15. Like this type of question is not asked in objective type. That's why there will be no option. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं? fill in the blanks without option, single correct answer, 2 correct options, 3 correct options, match the following. These are all what objective type क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन रहता है क्या कि इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन सॉल्व करो? नो, दैट्स वाई मार्क्स विद ऑप्शन आएगा ही नहीं. ओके, सो जितने मार्क्स विदाउट ऑप्शन है उतने मार्क्स विद ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता ही नहीं है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन कि सॉल्व दिस मेनी क्वेश्चंस ओनली, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है. देन short answer. Short answer means your question answers will be asked. Okay, so question answers जो पूछे जाएंगे वो रहेंगे 10 marks के लिए. Okay, from this 10 marks, this 10 marks is without option, and with option you are going to have 10 plus 6, so 6 marks आपका with option रहेगा. Okay, extra 6 marks रहेंगे, means total उन्होंने कितने questions दिए रहेंगे उसके ऊपर आप depend रहेगा. Okay, so this is what, this is with options. यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स में चॉइस रहेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा मार्क्स रखे हुए हैं. ओके, then lastly long answers. This long answer is nothing but this is a coding part. Okay, ये जो क्वेश्चन होता है लॉन्ग आंसर, ये आपका कोडिंग पार्ट होता है. इस कोडिंग पार्ट में without option you are having 10 marks and with option you are having 20 marks, क्योंकि 2 क्वेश्चंस रहेंगे तो 2 में से एक ही आपको सॉल्व करना है. ईच कैरीज 10 मार्क, तो 10 मार्क्स के रहेंगे, तो नेचुरली विदाउट ऑप्शन विथ ऑप्शन आप विदाउट ऑप्शन आपको 10 मार्क्स रहेगा और विथ ऑप्शन आपको 20 मार्क्स रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है इसलिए. तो ये कोडिंग के क्वेश्चन है. ओके, दिस क्वेश्चन आर ऑफ कोडिंग क्वेश्चन. This I will discuss this long answer means this question कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ये प्रैक्टिकल से नहीं आते हैं. ओके, दिस कोडिंग क्वेश्चन दिस क्वेश्चन दिस इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम प्रैक्टिकल सेशन. ये प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ही आने वाले हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ कोडिंग्स दिए थे, वो क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने वाले हैं. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट ओनली थिंग. ओके, बिकॉज वी वांट टू डू द रिविजन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट. ओके, जो कोडिंग के क्वेश्चंस इस क्वेश्चंस में आते हैं वो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. आई विल शो यू विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग and how to write the answer for that. Okay, in the next lecture I will do this part. Okay, so यहाँ पे this is clear. I hope this thing is clear. So without, हम लोग ने पहले स्लाइड में भी देखा था कि 80 मार्क्स थे विदाउट ऑप्शन एंड 96 मार्क्स विद ऑप्शन.
तो आपको जो ऑप्शन आने वाला है ना वो सिर्फ 7th और 8th क्वेश्चन में ही आएगा। ओके, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं रहने वाले। So you have to solve only this, only you are going to get the options. Okay, so let's move further and see the further part. See total questions with marks. Now you fill in the blanks, true or false, सब questions कितने marks के रहेंगे वो दिया है। Okay, let us see that. See here 1 mark 34 questions. 1 mark के कितने questions रहने वाले हैं? 34. Now वो कौन से टाइप के questions रहने वाले? That we will see. Fill in the blanks. Fill in the blanks 1 marks के रहेंगे 10 questions. Okay, तो यहाँ पे 10 marks हो गया. Then total marks is 34 marks with option is also 34 because ये सब objectives है, ये 34 के ही रहने वाले हैं। ओके, सो 1 मार्क के लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चंस रहेंगे। 10 मार्क्स के लिए एक एक क्वेश्चन को एक एक मार्क है। ओके, 1 मार्क। ट्रू और फॉल्स 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच। ओके, सो यहाँ पे भी 10 मार्क्स हो गया। 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स। सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट आंसर मीन्स ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट किया रहेगा। 4 ऑप्शन दे रहेंगे और या फिर 5 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर आपको चॉइस करना है, तो वो भी एक ही मार्क के लिए रहेगा। तो ऐसे आपको ये कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? ये भी 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, सो दिस आर आल्सो 10 क्वेश्चंस। सो 10 20 30 मार्क्स हो गया। नाउ मैच द पेयर, दिस विल बी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे सिर्फ आपको 4 मैच द पेयर्स दिए रहेंगे। ईच कैरीज 1 मार्क। ओके, ईच विल बी ऑफ 1 मार्क, दैट्स व्हाई दिस विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 4 मार्क्स। तो हो गया 34 मार्क्स का क्वेश्चन। 10 marks for fill-ups, 10 marks for true or false, single correct answer 10 marks and match the pair 4 marks. So total this questions will be of 34 marks. Okay, without option, with option, without option, because here there will be no option. ये वाले सब ऑब्जेक्टिव के टाइप क्वेश्चन है इसलिए, and each carries 1 mark. Then comes 2 marks question. 2 marks question means what now? यहाँ पे आपको 2 मार्क के लिए कौन से क्वेश्चन रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 15 प्लस 3, 3 विल बी ऑप्शनल। ये क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। ये जो 3 ऑप्शनल्स बता रहा है, सो दिस कम्स इन द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स में ये आता है। तो शॉर्ट आंसर्स भी 2 मार्क्स के हैं और आपको सिंगल करेक्ट आंसर भी 2 मार्क्स का रहता है। सी हियर 2 करेक्ट आंसर्स ईच विल बी कैरिंग 2 मार्क्स, राइट? सो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 20 क्वेश्चंस। 2 करेक्ट आंसर्स के कितने क्वेश्चंस रहेंगे? सॉरी नॉट 20, 10 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 इंटू 2 20। ओके, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स के लिए आपको कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 10। इसके पहले 20 क्वेश्चंस रहते थे, लेकिन इस बार इन्होंने 10 ही क्वेश्चंस कर दिया है। ओके, सो 2 करेक्ट आंसर्स यू आर हैविंग 10 क्वेश्चंस एंड 10 इंटू 2 यू आर गेटिंग 20 मार्क्स। सो 10 इंटू 2 इज 20 मार्क्स। Then short answer then it will be of 10 marks. Okay, short answer कितने मार्क्स का रहने वाला है? 10 marks. Then plus you are having option, this plus 6 also comes in this short answer only. 10 plus 6, इसके पहले हम लोगों ने देखा था short answer के लिए 10 marks रहेगा without option and with option 10 plus 6. So short answer is of 10 marks and 2 correct answer. This will be 10 questions which carries 20 marks. क्यों? क्योंकि 10 into 2 options आपको लिखने हैं, इसलिए 20 मार्क्स का ये हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, देन लेट्स मूव फर्दर। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? सिर्फ 2 क्वेश्चंस। ये आपको सिर्फ 3 करेक्ट ऑप्शंस में लिखना है। ओके, तो 3 2 कितना आएगा? 6। तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? टोटल 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। यहाँ पे भी कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का 2 मार्क्स आया था, इसलिए यहाँ पे चॉइस आया था। ओके, लेकिन यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर्स, 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, दैट इज 3 करेक्ट आंसर। ओके, तो 3 करेक्ट आंसर आपको 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 2 क्वेश्चंस आपको टोटल कितने मार्क्स देंगे? 6 मार्क्स। देन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का सिर्फ कोडिंग ही रहता है। ओके, सो 5 मार्क्स इट इज ऑफ कोडिंग। 2 plus 2 ऑप्शनल। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं? 2 plus 2 will be optional. यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस रहने ओके, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। HTML का एक रहेगा और एक CSS का कोडिंग रहेगा, कंपलसरी रहता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, कंपलसरी 2 रहेंगे और 2 क्या रहेंगे? ऑप्शनल रहने वाले। ओके, मीन्स इनमें से ही ऑप्शन रहेगा। ओके, HTML के 2 क्वेश्चंस दे रहेंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। CSS कोडिंग का 2 क्वेश्चंस दे रहेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
सी प्रीलियम पेपर दोगे आप तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आइडिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पेपर सेट किया जाता है. ओके, सो it will be of 10 marks without option and 10 plus 10 marks with option. Okay, I hope this is clear to you. यहाँ पे आपको HTML के दो कोडिंग दे रहेंगे, उसमें से एक कोडिंग सॉल्व करना है. CSS का दो कोडिंग क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है. ओके, तो इस तरह से कितने ऑप्शंस, दो क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए और दो ऑप्शनल. ओके, सो दैट्स व्हाई 10 plus 10, तो 10 है ऑप्शनल मार्क्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. This marks distribution from chapter wise. Okay, now chapter wise आपको क्वेश्चन टाइप भी दिया है और हर एक चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस को कितने मार्क्स है वो दिया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. आपको किस तरह से पढ़ना है, मीन्स किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया तो आपको वो जो बाकी के चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चन आंसर स्किप कर सकते हो, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है. ओके, सो ये देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को किस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं. ओके, नाउ सी फर्स्ट चैप्टर इज एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग. एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग, हियर दिस फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन. जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, ये चैप्टर में से आपको दो क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए. ओके, तो ये चैप्टर में से दो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है. एडवांस वेब डिजाइनिंग का जो चैप्टर है उसमें से आपको विदाउट ऑप्शन 2 मार्क्स के लिए कौन सा भी क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर से. ओके, देन ट्रू और फॉल्स भी 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए. MCQ 1 मीन्स एक ही सेलेक्ट करना है, सिंगल करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, तो वो सिर्फ ये चैप्टर में से आपको एक ही क्वेश्चन आने वाला है. ओके, एडवांस वेब डिजाइनिंग में से MCQ 1 सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है. MCQ 2 2 क्वेश्चन आने वाले हैं. अगर ये 2 क्वेश्चन आ गए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स 20. ओके, 2 मार्क्स का बोला है मीन्स एक ही क्वेश्चन रहेगा. ओके, दिस विल बी ओनली 1 क्वेश्चन. ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है क्योंकि MCQ 2 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स ही मिल रहा है, तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है. ये MCQ 2 मीन्स ऑब्जेक्टिंग 2 करेक्ट आंसर चॉइस करना रहेगा आपको, तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है एडवांस वेब डिजाइनिंग में से 2 मार्क्स के लिए. फिर MCQ 3, ये 3 मार्क्स के लिए आ रहा है मीन्स एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से. ओके, एडवांस वेब डिजाइनिंग में से MCQ 3 करेक्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से. ओके, देन मैच द फॉलोइंग एडवांस वेब डिजाइनिंग से नहीं आने वाला है. सो रिमेंबर दिस, मैच द फॉलोइंग आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग का पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में से आपको मैच द फॉलोइंग नहीं आने वाला है. नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग की नहीं पढ़ने. ये मैंने जब भी आपका चैप्टर सिखाया था तभी भी बोला था कि एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर से आपको कभी भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं. ओके, सो नो नीड टू स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, डोंट वेस्ट टाइम इन स्टडिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ वेब डिजाइनिंग, लीव दैट पार्ट. ओके, yes, no need to worry. Whatever we are saying in this like this only the paper distribution is going to come, mark distribution इसी बेसिस पे आपका पेपर सेट होने वाला है बोर्ड का. ओके, बोर्ड का पेपर इसी तरह से सेट होने वाला है. सो डोंट वरी. आपको लगेगा कि अभी तो बोला है लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करें. नो, ये हमें दिया ही, दिस मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय स्टेट बोर्ड इटसेल्फ. ये बोर्ड ने ही मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और पेपर भी उन लोग ही सेट करने वाले हैं. सो डोंट वरी. यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर का मैच द फॉलोइंग और शॉर्ट आंसर्स करने का जरूरत नहीं है. ओके, HTML प्रोग्राम तो इसी चैप्टर से आने वाला है, किसी और चैप्टर से आएगा ही नहीं. ओके, कौन सा भी देखो यहाँ पे कौन से भी दूसरे चैप्टर से आपको कोडिंग आने वाला है क्या, नहीं. कोडिंग आपको सिर्फ यहाँ पे इसी चैप्टर में कोडिंग है. ओके, HTML एंड CSS कोडिंग जो है वो प्रोग्रामिंग इज इन दिस चैप्टर ओनली. सो यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे ही 10 मार्क्स का रहेगा वो विथ ऑप्शन 20 marks. Okay, without option 10 marks, with option it will be of 20 marks. So total 20 plus 10 option. So अगर आपने इसका पूरा टोटल किया तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रॉम एडवांस वेब डिजाइनिंग, 20. तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि एडवांस वेब डिजाइनिंग इज ऑफ 20 मार्क्स. ये चैप्टर 20 मार्क्स का कैसे हुआ समझा.
फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए, 2 ट्रू और फॉल्स आएंगे 2 मार्क्स के लिए, एक एमसीक्यू आने वाला है 1 मार्क के लिए, एक एमसीक्यू विद 2 करेक्ट ऑप्शंस आने वाला है 2 मार्क्स के लिए, एक 3 करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन रहेगा एक 3 मार्क्स के लिए, और कोडिंग रहेगा। ओके, 2 कोडिंग्स आपको लिखने हैं 10 मार्क्स के लिए। ओके, सो लाइकवाइज यू आर गेटिंग 20 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया तो 20 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, और ऑब्जेक्टिव अगर करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोडिंग आपका पूरा करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में प्रॉब्लम रहता है कि अगर आपने बराबर सॉल्व नहीं किया तो आपके मार्क्स वहां पे कट हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूरे मार्क्स मिलते हैं एंड कोडिंग को आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर पूरा करेक्ट है तो। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका? डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ ज्यादा क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स है विदाउट ऑप्शन। ओके, 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये 4 क्वेश्चंस आने वाले 4 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। ओके, विदाउट ऑप्शन वाले, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया रहता है, वो वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, देन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आने वाले 3 मार्क्स के लिए। ओके, ट्रू और फॉल्स फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, कितने क्वेश्चंस आने वाले? 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स। MCQ 1 मीन्स एक सिंगल करेक्ट आंसर लिखना है, तो 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए आ रहे हैं। सो अगर ये चैप्टर्स के सिर्फ ये ही अच्छे से पढ़े तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट? fill in the blanks without option, true or false and MCQ 1. Okay, so यहाँ पे 4 questions 4 marks. So ये चैप्टर में से आपको MCQ 2 जो रहते हैं 2 करेक्ट आंसर्स वो नहीं आने वाले, तो आपको there is no need to study MCQ 2 from this chapter. Okay, so if you are skipping this MCQ 2 from this chapter will do, यहाँ से नहीं आने वाला है। Okay, so MCQ 2 करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर में नहीं, चैप्टर से नहीं आने वाला है। देन MCQ 3 करेक्ट ऑप्शंस, 3 करेक्ट ऑप्शंस का एक क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि 3 करेक्ट आंसर्स लिख रहे हैं तो 3 मार्क्स मिल जाएगा एक क्वेश्चन को, बराबर है? तो यहाँ पे ये जो है 3 करेक्ट आंसर्स लिखो, तो फ्रॉम दैट ओनली फ्रॉम दिस 2 चैप्टर्स ओनली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, बाकी किसी चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस का आंसर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। Select any 3 correct options from the given options, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही आने वाला है, दैट इज एडवांस वेब डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। बाकी किसी भी चैप्टर से ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी भी चैप्टर्स का 3 करेक्ट आंसर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में तो ऑब्जेक्टिव्स के इतने मार्क्स यहाँ पे ही पूरा ऑब्जेक्टिव का ही मार्क्स मिल रहा है अगर आपने पूरे ऑब्जेक्टिव्स डिजिटल मार्केटिंग के अच्छे किए तो। ओके, मैच द फॉलोइंग का एक ही क्वेश्चन आने वाला है फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो देखो फिर शॉर्ट आंसर्स तो है ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स एडवांस वेब डिजाइनिंग के भी नहीं पढ़ने, आपको डिजिटल मार्केटिंग के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं पढ़ने। देयर इज नो नीड टू स्टडी क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम फर्स्ट chapter, that is advanced web designing and from digital marketing. Now there is no coding from digital marketing because coding is not there, coding is only in the first chapter, so this is also not there. Full objective questions are there from the digital marketing, so study thoroughly this digital marketing ऑब्जेक्टिव सो दैट यू कैन गेट फुल 15 मार्क्स, पूरा 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST। नाउ दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, ट्रू और फॉल्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क। देन यहाँ पे आपको MCQ 1 सेलेक्ट एनी 1 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है तो वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन स्टडी MCQ 2। ओके, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चैप्टर MCQ 2, यहाँ पे आपको 8 मार्क्स है, मीन्स कितने क्वेश्चंस आपको आएंगे इसमें से? MCQ 2 के 4 क्वेश्चंस, क्योंकि ये 8 मार्क्स के लिए दिया है तो कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 4 क्वेश्चंस, राइट? 4 into 2 8, सो ये मार्क्स दिया है, राइट? तो ये कितने क्वेश्चंस रहेंगे MCQ के? MCQ विद 2 करेक्ट ऑप्शंस 4 क्वेश्चंस। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको सेलेक्ट एनी 2 करेक्ट ऑप्शंस 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, 8 मार्क्स के लिए। देन मैच द फॉलोइंग,
एक क्वेश्चन, one question, 1 mark. Then from this chapter you are going to get short answer. क्वेश्चन आंसर आएगा इस चैप्टर से, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है 4 मार्क्स के लिए प्लस 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकता है, दैट्स वाई 2 ऑप्शन यहाँ से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, नॉट 4 क्वेश्चन सॉरी 4 मार्क्स है, मीन्स कितने क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से, आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे प्लस एक एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 3 क्वेश्चंस। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए आपको ये वाला चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है। देन कोडिंग तो नहीं है, टोटल आपके 15 मार्क्स है प्लस 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स जो एक्स्ट्रा रहेगा वो वाला। ओके, सो दिस इज द मार्किंग स्कीम ऑफ दिस चैप्टर। Okay, now let's move towards the 4th chapter, that is e-commerce and e-governance. Okay, so ये chapter का fill in the blanks without option, 1 question 1 mark, true or false 1 question 1 mark, MCQ single correct answer 1 question 1 mark, MCQ 2 that is single correct 2 correct options 1 question 2 marks. Okay, एक ही क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। देन MCQ 3 मीन्स सेलेक्ट 3 ऑप्शंस, तो ये तो आने वाला ही नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में, फर्स्ट 2 चैप्टर्स में उसका मार्क्स फिनिश हो गया है। ओके, दैट्स वाई बाकी किसी भी चैप्टर से MCQ 3 नहीं आने वाला है। देन मैच 1 क्वेश्चन 1 मार्क, अगेन क्वेश्चन आंसर्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस? 2 questions compulsory and 1 will be optional. Okay, 2 questions will be compulsory and 1 will be optional. So this also, ये chapter भी आपको question answers, इस chapter का question answers आपको पढ़ना है। Okay, then next chapter is database. Database, fill in the blanks without option, 1 question 1 mark, true or false 2 questions आने वाले आपको database से, true or false 2 questions 2 marks. Then MCQ 1 question 1 mark, then MCQ 2 मीन्स सेलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस। सेलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस आपको यहाँ पे कितने आने वाले हैं? 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, देन इट विल कैरी 6 मार्क्स। ओके, 3 2 6। ओके, तो ये मार्क्स दिए हैं 6 मार्क्स, तो क्वेश्चंस कितने रहेंगे इस चैप्टर से? MCQ 2 के 3 क्वेश्चंस। ओके, 3 क्वेश्चंस। देन यहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है और इस यहाँ पे 1 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन MCQ 2। देन MCQ 3 तो नहीं आएगा, मैच द फॉलोइंग इस चैप्टर से नहीं आने वाला है, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं रहेंगे इस चैप्टर से और कोडिंग भी नहीं। सो सी डेटाबेस लिब्रे ऑफिस, यूजिंग लिब्रे ऑफिस फ्रॉम दिस चैप्टर देयर इज नो नीड टू स्टडी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, कोडिंग तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, दैट इज ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फ्रॉम दिस चैप्टर fill in the blanks without option 1 mark, then fill in true or false 1 question 1 mark, MCQ 1 3 questions will be there and it carries 3 marks. MCQ 1 select any one option, 3 questions 3 marks. Then MCQ 2 1 question 2 mark. Okay, MCQ 2 1 question 2 marks. MCQ 3 is not there, then match the following 1 question 1 mark. Then short answers, ERP से आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी और एक ऑप्शनल है। ओके, एक क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, एक ऑप्शनल होगा। देन टोटल इज 10 मार्क्स। ओके, सो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सी 10 10 10 20 देन 6 4, this is also 10 and total it comes to 10 total it comes to 80 and this optional is 16 marks, that is total without option it will be 80 marks and with option it will be 96 marks. So see, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख के आपको एक बात तो क्लियर हो गया कि मुझे किस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। सब बच्चों को एक ही क्वेश्चन रहता है कि मैडम सब चैप्टर्स के हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं क्या, तो यहाँ पे एक डाउट तो सब बच्चों का क्लियर हुआ रहेगा, that from which chapter question answers is going to come. So for question answers you have to study computerized accounting question answers, e-governance, in e-commerce question answers and ERP question answers. ओके, ये 3 चैप्टर्स के ही क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, बाकी किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। ओके, सो उसी तरह से कोडिंग सिर्फ इसी चैप्टर में रहेगा, बाकी किसी चैप्टर में कोडिंग आपको नहीं है। MCQ 3 भी सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स का ही पढ़ना है, बाकी किसी चैप्टर्स का MCQ 3 बढ़ के टाइम पास मत करो, आपको ये नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आने वाले
है. Okay, so this is the marks distribution. I hope this is clear to you. Okay, now let's move further. Now, this is very important because this is a paper pattern. This is the paper pattern for prelim also and for final exam. तो same pattern हम लोग अभी prelim papers में भी follow करने वाले हैं. वही pattern आपको final exam में, board exam में भी आने वाला है. Okay, question number 1, fill in the blanks. This will be without option. 10 questions. Number of questions will be 10 and it carries 10 marks. True or false? 10 questions, 10 marks. मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर मीन सिंगल ऑप्शन, सिंगल करेक्ट आंसर आपको चॉइस करना है. 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स. मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको 2 करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं. तो 10 क्वेश्चंस विल बी देयर, देन इट विल बी ऑन 20 मार्क्स. मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर, 2 क्वेश्चंस 6 मार्क्स. मैच द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स. आंसर ब्रीफली एनी 5. यहाँ पे देखो आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, सो आपको एनी 5 सॉल्व करने हैं. तो आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 8. आपको 8 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 5 क्वेश्चन. तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 10. तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहने? 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 2 मार्क्स का. ओके, सो 2 मार्क्स से हम लोग को कितना मार्क्स मिलने वाला है? 10 मार्क्स. देन क्वेश्चन नंबर 8, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, A and B. राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML एंड राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML. तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन देने वाले हैं आपको HTML का. तो यहाँ पे सिंपल HTML और यहाँ पे CSS का क्वेश्चन रहेगा. ओके, प्रोग्राम का. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है. तो टोटल क्वेश्चन 2 है, इसमें से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले. कौन सा भी एक सॉल्व करना है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. दोनों यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे कोडिंग के, इसमें से भी आपको एक सॉल्व करना है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 58 and total marks is 80. Okay, so I hope this is clear to you. It is very important. So see, this paper pattern I'm going to follow in prelim exam also. So यही paper pattern से मैं आपका prelim का paper set करने वाली हूँ. So you will get the idea how the question paper is going to come. Okay, now let's move further. नाउ दिस इज फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम. ओके, ये हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम का देख रहे हैं. हम लोग का पेपर पैटर्न, थियरी पेपर के बारे में हम लोग ने सब देखा. नाउ पेपर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम. HSC बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 hours. Okay, it is of 3 hours practical exam. SOPs given in the IT commerce textbook from page number 110 to 118 should be considered as a practical slips for conducting practical examination. What this says that जो भी practical, जो भी SOP हम लोगों ने पढ़े हैं, वही आपको बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल का स्लिप आने वाला है. सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं. ओके, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्स में हम लोग क्वेश्चन को चेंज नहीं करते, हम लोग वो सेम क्वेश्चन का ही स्लिप एग्जाम में देते हैं. टोटल 2 SOP slips of different skill set should be given to the student at the time of prelim और HSC board practical examination. तो बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में हम लोग आपको 2 स्लिप्स देने वाले हैं. टोटल 2 SOP स्लिप्स, आपको 2 स्लिप्स देने वाले. ओके, सो 2 अलग अलग क्वेश्चंस के. अगर सपोज एक आपका HTML का क्वेश्चन है तो दूसरा SOP आपका डेटाबेस का हो सकता है, या फिर दूसरा आपका क्या बोलते डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है, टैली का हो सकता है, या फर्स्ट क्वेश्चन टैली का हो सकता है, दूसरा डेटाबेस का हो सकता है. कौन से भी 2. इट्स नॉट कंपलसरी कि पहला HTML ही आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, 2 स्लिप्स रहेगा. कोई भी प्रैक्टिकल जितने भी SOP हम लोगों ने किए हैं उतने SOP में से कौन से भी क्वेश्चन आपको आएंगे. ओके, आउट ऑफ विच स्टूडेंट शुड परफॉर्म एनी 1 SOP. आपको 2 SOP दिया रहेगा, उसमें से आपको सिर्फ एक ही SOP सॉल्व करना है. ओके, ऑफ हिज और हर चॉइस. आपको जो पसंद है, मीन्स आपको जो 2 स्लिप्स देंगे उसमें से आपको जो आता है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ओके, देन 15 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. सो यू आर गोइंग टू गेट 15 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. जो पेपर आप सॉल्व करोगे आपको कंप्यूटर पे भी करना है, आपको पेपर में भी लिखना है कोडिंग, और आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाना है, उसका भी प्रिंट आउट आपको लेना है. ओके, सो उसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं. एंड 5 मार्क्स फॉर सर्टिफाइड जर्नल, दैट इज टोटल 20 मार्क्स. और 5 मार्क्स आपको जर्नल के मिलने वाले हैं. तो जर्नल आपको मेंटेन करना है. जर्नल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट दिस
in next lecture, or not in next lecture, whenever college is going to start, or whenever you are able to come to college, that time we will give you the journals. Okay, then तो उसका आपको journals के आपको 5 marks है. Total you are going to get 20 marks for the practical examination. Okay, should be conducted. Then the marking scheme for HSC board practical exam is as follows. तो आपको किसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 15 मार्क्स को तो आपको कोडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मार्क कैसे मिलते हैं, मार्क्स कैसे मिलते हैं? राइट अ प्रोग्राम और कोड और स्टेप्स एंड एग्जीक्यूट इट. आपको प्रोग्राम या फिर कोड या स्टेप्स जो भी है आपको वो लिखने हैं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है. तो प्रोग्राम कब लिखो, प्रोग्राम कोड स्टेप्स आप ये कब करते हो? डेटाबेस टैली का क्वेश्चन रहेगा तो भी आपको स्टेप्स लिखने हैं. डिजिटल मार्केटिंग रहेगा तो भी जो क्वेश्चंस रहेगा उसके आंसर्स लिखने हैं. देन डेटाबेस अगर आपका है तो आपको उसके लिए भी स्टेप्स लिखने हैं. लेकिन HTML के लिए आपको कोडिंग लिखना है, प्रोग्राम लिखना है. ओके, सो जो भी क्वेश्चन आपको आता है, जो आपको दिया रहेगा उसमें से आपको वो पहले लिखना है पूरा. हैंड रिटन कोड, जो भी कोड आप लिख रहे हो या स्टेप्स लिख रहे हो उसके लिए आपको 5 मार्क्स है. पेपर में जो आप लिखोगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स है. देन करेक्ट टाइपिंग एंड सिंटेक्स. सो करेक्ट टाइपिंग, आप जो बाद में आपको कंप्यूटर पे भी टाइप करना है तो आपको करेक्ट टाइप करना है और सिंटैक्स भी करेक्ट लिखना है. अगर आपने वो पूरा करेक्ट लिखा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. एग्जीक्यूशन, आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है आपने जो कोड लिखा है, उसके आपको 3 मार्क्स है. ओके, जो क्वेश्चन आप एग्जीक्यूट करके दिखाओगे उसके लिए आपको 3 मार्क्स है. एंड प्रिंट आउट, जो आप प्रिंट आउट लगाओगे आउटपुट का, उसके लिए आपको 2 मार्क्स है. ओके, सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू गेट 15 मार्क्स. So handwritten code on the paper, that will be of 5 marks. Correct typing and syntax on the computer, that will be of 5 marks. Execution, that means showing the output to the examiner, that will be of 3 marks. And then taking the printout of the output, that will be of 2 marks. तो printout आप attach करोगे उसके लिए आपको 2 marks है. Total you are going to get 15 marks. And B is the complete and certified journal. आपका जर्नल पूरा कंप्लीट होना चाहिए. जितने SOP सिखाए वो पूरे आपके जर्नल्स में होने चाहिए. प्लस उसका करेक्शन होके टीचर्स से सर्टिफाइड भी होना चाहिए जर्नल. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स फॉर योर जर्नल, अदरवाइज यू वोंट गेट दिस 5 मार्क्स. देन द ग्रैंड टोटल विल बी ऑफ 20 मार्क्स. टोटल आपको कितना मिलेगा? 20 मार्क्स मिलेगा. इफ एवरीथिंग इज करेक्ट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ मार्क्स. सो ट्राई टू डू योर कोडिंग और योर प्रैक्टिकल एग्जाम हैज पर दिस रूल. ओके, इस तरह से किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. कोडिंग रॉन्ग रहेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो we have discussed today very important thing, that is the paper pattern, chapter wise distribution. Even we have seen the marks distribution depending upon the questions. Okay, and we have also seen the paper pattern of board exam for theory as well as for the practical exam. Okay, so now this way we have completed our paper pattern also. In the next lecture we will study the coding part, the questions which they can ask in the question number 8. जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोडिंग्स पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे. we will start from the next lecture and we will study that thing because that is very important. वो आपको आ गया तो आपके वो 10 marks आपके हाथ में रहेंगे. Okay, so that you can score 10 marks out of 10 marks from the question number 8. So this is all for today. Thank you for watching this lecture. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.